PowerPoint presentation. A very good afternoon to all, our respected principal, our resource person, faculty colleagues from across the state, scholars and students. On behalf of the Internal Quality Assurance Cell, IQAC of Wazir Ram Singh Government College, Delhi, I extend a heartfelt welcome to each one of you joining us online today. When we launched Delhi Dialogues, the first edition, our vision was simple yet ambitious to build a reflective national platform where educators, researchers, and thinkers could come together to deliberate on pressing issues in higher education. Thanks to the overwhelming support of our academic community, that vision truly came to life. Across 11 impactful sessions, we covered a wide spectrum of contemporary topics, from pedagogical innovations to research methodologies, receiving appreciation and active participation from all corners of the country. That success demonstrated that even from a quiet valley in Himachal Pradesh, we can foster conversations that resonate nationally. Building on that very momentum and trust, it is my privilege to welcome you to the inaugural session of Dairy Dialogues 2.0, a monthly national webinar series on contemporary concerns in higher education. Today, July 24, marks International Self-Care Day. It is entirely fitting that we begin the second edition by turning our focus inward, towards the very foundation of any dynamic academic ecosystem, the well-being of its people. In the fast paced, high demand environment of higher education, we often prioritize research, targets, lectures, administrative duties, while neglecting our own physical, mental, and emotional health. But true educational excellence cannot thrive on burnout. It requires sustained vitality and inner resilience. To guide us through this vital conversation today, we are honored to have with us Dr. Aditya Sharma, who will speak on the topic Nurturing the Navigator, Prioritizing Holistic Well-being in Higher Education. Dr. Aditya Sharma, we are deeply grateful to you for accepting our invitation and gracing the inaugural session of this series. Without taking any more time, I once again welcome everyone to Delhi Dialogues 2.0. But may the series spark insightful learning, meaningful action, and lasting well-being for us all. With this, it gives me immense pleasure to invite our principal, Dr. Sachin Kumar, to introduce our revered speaker, Dr. Aditya Sharma, and lead us through this insightful session. Over to you, sir. Thank you, ma'am, and welcome, Dr. Aditya. Thank you, sir. जब जहाज में केबिन का प्रेशर कम होने लगता है तो बोलते हैं कि आप जो हैं पहले अपना मास्क लगाएं और फिर दूसरों की सहायता करें, लेकिन कई बार हम कॉम्पैशन ओवरफ्लो में अपनी केयर कम करते हैं और दूसरों की केयर कम करते हैं और ये भूल जाते हैं कि यदि हम अपनी ही केयर नहीं कर पाएंगे तो दूसरों की कैसे कर पाएंगे। तो ये बहुत बिफिटिंग है कि इंटरनेशनल सेल्फ केयर डे पे हम होलिस्टिक हेल्थ की बात कर रहे हैं, क्योंकि हायर एजुकेशन में जो आप सुसाइड्स की रेट्स देख रहे हैं, डिप्रेशन के केसेस देख रहे हैं, स्ट्रेस के केसेस देख रहे हैं, वहाँ पर होलिस्टिक वेलबींग बड़ा ही क्रिटिकल इशू हो जाता है। और उस पर बात करने के लिए हमारे पास डॉक्टर आदित्य हैं। डॉक्टर आदित्य हाईली क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस प्रोफेशनल हैं। मुंबई से इन्होंने MBBS किया है। पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम जो एग्जीक्यूटिव पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम हेल्थ एनालिटिक्स और हेल्थ मैनेजमेंट में होती है, IIM कोझिकोडे से किया है आदित्य जी ने। फिर जो एडवांस्ड कार्डियोवास्कुलर लाइफ सपोर्ट सर्टिफिकेशन, इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है, बहुत प्रेस्टिजियस, वो भी इन्होंने ऑब्टेन किया है। NCR एरिया में इन्होंने प्रेस्टिजियस हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी केयर प्रोफेशनल के रूप में काम किया है, मणिपाल में, आर्टेमिस में, और अभी ये रिलायंस लिमिटेड में कॉरपोरेट हेल्थ प्रोफेशनल के रूप में काम कर रहे हैं। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट भी हैं, इमरजेंसी केयर प्रोवाइडर भी हैं, तो इनकी बहुत सारी एक्सपर्टीज है। और इनकी जो एक और चीज़ जो बड़ी इंटरेस्टिंग और यूजफुल पता चली है कि एक तो डॉक्टर थ्रू क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस होते हैं, बट जो मुझे इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी मिली है वो ये है कि ही इज डॉक्टर बाय हार्ट ऑल्सो। दैट मीन्स ही टेक्स केयर ऑफ patient, providing end-to-end solution. It's not just someone visits to him और उनको प्रिस्क्रिप्शन लिख देते हैं और फिर जब दोबारा आता है तो उनका केयर करते हैं। He ensures
complete well-being. It's not just one and done kind of an approach, which generally doctors follow, and they're, I mean, rightly so, because of the limitation of time that every health professional is having. But despite all these limitations, the personal attention that he pays is commendable. And we always wanted to invite people who are not just a professional, but who is professional at heart. So welcome again, Dr. Aditya. It all yours. Please carry on from here. Thank you so much, sir, for the warming and kind welcome that you have given to me and providing the insights that ma'am shared with you, I guess, with respect to the approach that I have when it comes to dealing with the patients and their family, like my employees and my family, their family members. So my motto has always been that care doesn't stop only after the prescription. It is a continuum. So that is where I deal with my patients and my employees. So we'll start with the topic. We will not take much of your time. I know all of us are like into like academics and busy professionals. So first and foremost, if I'll start with the topic, सर ने वैसे बहुत अच्छी चीज बताई जो start करके कि suicides, student suicides and even academicians burnout. This is a very, very important issue. If I will give you a startling fact to start with, though it is not a negative thing to say, but yes, a fact तो fact रहेगा. Last अभी हमारा जो statistics आए हैं, facts जो data आया है, 14,000 suicides are happening annually in India. और ये अगर हम ओवर अ डिकेड अगर हम इसको देखें ट्रेजेक्टरी को तो देयर इज एन 80% जंप ओवर द लास्ट डिकेड. तो इट टेल्स समथिंग. सोसाइटी में प्रॉस्पेरिटी आ रही है, हमारे बच्चे मतलब एकेडमिकली बेटर कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम देयर इज समथिंग मिसिंग. कुछ हम पकड़ नहीं पा रहे हैं कि इतने ज्यादा सुसाइड्स हो रहे हैं. अभी नीट का जो इतना इशू चल रहा है, पेपर लीक के बाद भी आई थिंक ऑलमोस्ट 20 स्टूडेंट्स कमिटेड सुसाइड. So this tells us something that resilience building is very, very important. We can't just be focusing on academic excellence and everything, but अपनी health को compromise करके. So the topic is all about this only, self-care. जो आज ये हम day celebrate कर रहे हैं, International Self-Care Day. अगर आप इसकी date से भी सोचें, हर चीज का कुछ importance होता है. 24th July जो date रखी गई है International Self-Care Day की, why it is so? Can anybody tell me? 24/7 कुछ क्लिक कर रहा है आपको. So basically 20 I'll continue with the slides. I just wanted to raise your attention. 24/7 से मतलब ये है कि 24 hour 7 day in a week you have to take care of yourself. It is not a duty of just the doctor that वो अपना जब आप when you are in problem then only they will come and help you out. Ma'am, next slide please. मैम इसको फुल स्लाइड कर लीजिए. फुल स्लाइड कर लीजिए प्रेजेंटेशन मोड में एंड सेकंड स्लाइड पे आप जाएंगे. मैंने स्लाइड शो पे रखा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. या प्लीज, बट स्लाइड शो दिख नहीं रहा है मैम. एनीवे अभी ना मैम वो नहीं दिख रहा है, मतलब फुल स्क्रीन में नहीं आ रहा है. जस्ट अ सेकंड. नाउ इट्स फाइन. नहीं, सेकंड स्लाइड में हम चले गए हैं. नाउ हाँ, नाउ इट इज बेटर. या सो बेसिकली जो 24/7 का कंसेप्ट जो मैं आपको बता रहा था, उसका जो डेट रखने का पर्पस यही है टू इम्बाइब दिस फिलोसफी ऑफ 24/7 केयर फॉर सेल्फ. मतलब ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब आपको कोई डिजीज हो तब आप क्यूरेटिव एस्पेक्ट पे जाएं. वी शुड गो फॉर प्रिवेंटिव मेडिसिन. आजकल दिखते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. तो इसीलिए 24/7 जो है, ये 24th of July इज द डेट व्हेन वी सेलिब्रेट इंटरनेशनल सेल्फ केयर डे. तो इसके बाद जो हमारा सेकंड जो पार्ट आता है कि व्हाई दिस इज स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड. जब हम बात कर रहे हैं एकेडमिशियंस एंड स्टूडेंट्स की, हम यूनिवर्सिटी कैंपस के स्टाफ की बात करते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि वी आर क्रिएटिंग दी, एक है क्रिएटर और एक है क्रिएशन. आप जो प्रोफेसर हैं, फैकल्टी हैं, वो इस देश के जो नए भारत जिसको हम बोलते हैं, युवा को जो अपने एम्बिशंस लेके आया है, उसको आप एक रास्ता दिखा रहे हैं. यू आर गिविंग हिम नॉट जस्ट द डिग्री बट द वे टू एक्सेल इन दिस लाइफ, राइट. तो उस केस में जनरली क्या होता है, हमारे यहाँ पे कल्चर में
बर्नआउट, मैं अगर अपने कॉलेज की बात करूं तो बर्नआउट वाज ऑलवेज कि यार हमने 100 घंटे ड्यूटी करी है और ये देखो तुम लोग आज 80 घंटे ड्यूटी करने के लिए तुम्हारे को इतनी दिक्कत हो रही है. सिमिलरली व्हेन इट कम्स टू यूनिवर्सिटीज में रात रात भर जिसको बोलते हैं द कल्चर ऑफ बर्निंग द मिडनाइट ऑयल वाज वेरी वेरी ग्लोरिफाइड, right? And we all have gone through, I think most of us have gone through that pressure and burnout. तो बट जो करंट सिचुएशन है जिसमें जो हम जिसको बोलते हैं कि आज की जो जनरेशन है जो अब आ रही है 2000 का, जिसको जेनजीज बोलते हैं या सो कॉल्ड अल्फा बीटा अलग अलग जो आ रहे हैं, जो हम नाम दिए जा रहे हैं, नेम टैग दिए जा रहे हैं, दे डोंट वांट टू एंजॉय देयर लाइफ आल्सो, एंड दे डोंट वांट कि भाई हम जो प्रेशर है उसके थ्रू ही हम एक्सेल कर सकते हैं. वी कैन एक्सेल इन अ थ्राइविंग एनवायरनमेंट आल्सो. The problem that we are facing right now is when it comes to students जो हमारे को मिलते हैं, largely उनके regular sleep schedules होते हैं, high इसको बोलते हैं caffeine या energy drink intake बहुत ज्यादा है to sustain for the long hour studies and research. Prolonged screen time है, वो तो हमारे part and parcel of life बन चुका है कि हमारे जो भी presentations हैं, हमारा जो भी work है largely वो tabs पे laptops पे हो रहा है. But again, they also end up with exam stress. क्योंकि excel करना है तो you'll have to, stress is not a bad thing. You need certain amount, इसको बोलते हैं threshold तक stress भी जरूरी है, so that you don't become laid back. But that is a positive way of looking at it. तो उससे होता क्या है? लेकिन problem ये होती है कि they at times feel acute anxiety. There is because of the irregular sleep cycle, circadian जो rhythm जिसको हम बोलते हैं, जो कि हमारी डे एंड नाइट जो लाइफ साइकिल जो स्लीप पैटर्न है और हमारा डे वेकअप साइकिल स्लीप वेकअप साइकिल वो डिस्टर्ब होता है हमारा. उसकी वजह से होने वाली काफी सारी न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स हैं, जैसे अल्जाइमर्स है, जिसमें हमारी डिमेंशिया है, भूलने की बीमारी, और पार्किंसनिज्म, ऑल दीज थिंग्स डू डेवलप. ये मैं आगे बात करूंगा इसके बारे में. फिर पोस्चर एंड नेक स्ट्रेन बहुत कॉमन है बिकॉज ऑफ लॉन्ग स्क्रीन टाइम, राइट? एंड अर्ली स्टेज मेटाबॉलिक इश्यूज आर देयर. मतलब अर्ली एज में भी लोग हम लोग देखते हैं. अभी मैं अपने कई अपने एम्प्लॉइज के बच्चों की जब मैं रिपोर्ट चेक करता हूँ तो लिपिड्स जो कि एक लेट स्टेज में, जो हम कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, कोलेस्ट्रॉल एंड शुगर अभी भी इस अर्ली एज में भी डिरेंज आ रही है उनकी. उसके बाद हम बात करते हैं कि व्हेन इट कम्स टू फैकल्टी, व्हाट फैकल्टी गोज थ्रू, so they are chronically overloaded. Like I come from a family of teachers. Like my mother and my father both were in the same field. So I have seen then कि वो कॉपी चेक करना है रात रात लेट नाइट, उनको अपना कोई अगर कल के लिए प्रिपरेशन करनी है, कुछ प्रेजेंटेशन लेक्चर प्रेजेंटेशन के लिए, तो कंटिन्यूस सिटिंग है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल बन जाती है आपकी. फिर you cannot you have to do a lot of other tasks, administrative tasks also, which takes a toll on your emotions, है ना. आपकी वर्क एंड होम बाउंड्रीज कई बार हमारे डिस्टर्ब हो जाती है. वी डू टेक और जो बोलते हैं कि असेसमेंट जो होते हैं उनको पेपर्स को हम घर पे आके भी चेक कर रहे होते हैं. तो दिस इज वेयर देयर इज अ क्रॉनिक स्ट्रेस एंड वर्कलोड. उससे होता क्या है, देखिए सेडेंटरी लाइफस्टाइल एंड स्ट्रेस, दीज टू आर दी बोलते हैं कि बिगेस्ट प्रॉब्लम्स दैट आवर जनरेशन इज फेसिंग. इट इज इवन इक्वलेंट टू स्मोकिंग एंड अल्कोहल. ये मैं आपको इक्वेट करके बताऊं तो इससे क्या डेवलप होता है, हाइपरटेंशन, बर्नआउट सिंड्रोम, मेटाबॉलिक सिंड्रोम इज लाइक बेसिकली हैविंग हाई इंसुलिन रेसिस्टेंस, ओबेसिटी, ठीक है. एंड यू आर ऑलवेज इन दिस फेज ऑफ फटीग कि एनर्जी नहीं है, यू आर हैविंग लो एनर्जी, एंड दैट इंपैक्ट्स द प्रोडक्टिविटी आल्सो. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज मैम. तो अगर हम बात करें जो वास्ट मेजोरिटी ऑफ जो क्राइसिस हैं, नॉट जस्ट इन द कैंपस बट they are mostly 80% of them are preventable. 20% we can say they are genetic factors related हैं, उनको हम नहीं उतना एड्रेस अभी इतने अच्छे से, बट हाँ एडवांसमेंट आ रहा है. बट अप टू 80% ऑफ जो क्रॉनिक कंडीशंस जिनकी, जिसमें कार्डियोवास्कुलर इश्यूज हो गए, आपके मेंटल हेल्थ इश्यूज हो गए, डायबिटीज, हाइपरटेंशन लाइक इश्यूज हो गए, ये सब आर दीज ऑल आर प्रिवेंटेबल. लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से दीज कैन बी प्रिवेंटेड. बट अगर आप अवेयर है, सेल्फ अवेयर है, आप अर्ली वार्निंग साइंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उनके ऊपर एक्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. या सो इसके बाद आता है हमारा प्रिस्क्रिप्शंस एज अ डॉक्टर. देखिए हम एज अ डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शंस बहुत लिखते हैं, बट हियर आई डोंट वांट टू राइट अ प्रिस्क्रिप्शन टू एनीबॉडी. आई जस्ट वांट टू प्रिस्क्राइब और सजेस्ट समथिंग फ्रॉम माय साइड कि किस तरह की आपकी डेली लाइफस्टाइल होनी चाहिए, सो एज टू हेल्प यू आउट विद रिस्पेक्ट टू प्रिवेंटिव एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ केयर. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसको हम सबसे ज्यादा नेग्लेक्ट करते हैं व्हेन वी आर एन एकेडमिक स्टूडेंट और एन एकेडमिशियन, स्लीप. तो हमारा स्लीप साइकिल जो बड़ा डिस्टर्ब रहता है, हम लोग लेट नाइट तक जगते हैं,
सुबह अपने स्कूल कॉलेजेस में आना होता है लेक्चर्स के लिए या फिर अपने एकेडमिक सेशंस के लिए, रिसर्च के लिए, तो सुबह जल्दी उठना पड़ता है। तो जनरली अगर जो देखा जाता है वो ये है कि अगर हम ये कर सकें कि अपना स्लीप वेक टाइम एटलीस्ट उसको डिसिप्लिन तरीके से फॉलो करें, देन इट विल रिड्यूस कॉर्टिसोल लेवल्स, जिसको कि कॉर्टिसोल इज स्ट्रेस हार्मोन, इसको रिड्यूस करता है एंड यू विल हैव a good what you can say blood parameters, overall a good mood throughout the day. तो इसीलिए बोला जाता है सबसे इंपॉर्टेंट है वेक एट द सेम टाइम डेली, सबसे इंपॉर्टेंट। एंड उठने के बाद 10 से 15 मिनट नेचुरल सनलाइट में जरूर जाएं। वाई दैट इज नेसेसरी? बिकॉज आपका जो माइंड है, जो ब्रेन है, वो परसीव करता है सनलाइट को एज अ साइकिल ऑफ वेकअप, कि आपको उठना है। तो आपका नॉक्टर्नल जो मेलाटोनिन है, जो कि रात के समय में बढ़ता है, जो शाम को बढ़ना चालू होता है और रात में पीक करता है, वो मेलाटोनिन को ग्रेजुअली सप्रेस करता है डे लाइट, जो डे सनलाइट है। उससे आपको योर बॉडी गेट द सिग्नल, नाउ यू हैव टू बी एक्टिव, एंड अदर जो हार्मोन्स जैसे कॉर्टिसोल्स हैं, नॉरेपिनेफ्रिन है, एपिनेफ्रिन है, दे स्टार्ट इंक्रीजिंग, राइट, विच कीप्स यू अवेक थ्रू आउट द डे एंड एक्टिव। फिर डे टाइम में क्या करना है हमारे को? डे टाइम में वी हैव टू कीप हाइड्रेटेड अवरसेल्फ। सो सबसे इंपॉर्टेंट टूल अगर आप कर सकते हैं सुबह उठते उठते, एक तो जो मैंने बोला 10 से 15 मिनट आप बाहर अपना सनलाइट में जाएं, उसके साथ ही एक 500 ml का ग्लास पानी का, अगर आप वार्म वाटर ले सकते हैं, इफ यू फील लाइक दैट इट इज गुड। अगर आपको जिंजर हनी वाटर लेना है, वट एवर इज योर चॉइस, बट पानी से बनी हुई पानी की चीज, चाय नहीं पीनी सुबह सुबह उठ के, पानी आपका चलेगा। वार्म वाटर इज द बेस्ट हाइड्रेटर, उसको सुबह उठते पिएंगे, क्योंकि रात के टाइम पे जब हम सोते हैं तो स्लीप में बिकॉज ऑफ ब्रीदिंग हमारा बहुत सारा वाटर लॉस होता है। कई लोगों को आपको फील होता है वो सुबह उठते हैं तो मुंह सूखा हुआ होता है, ड्राइनेस फील होती है माउथ में। तो गेट हाइड्रेटेड फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग विद 5 ml ऑफ ग्लास। सेकंड थिंग इज मिड डे में आपने क्या करना है, रिप्लेस थर्ड ऑफ योर कॉफी। मतलब अगर आप 3 कप कॉफी पीते हैं तो आप एटलीस्ट 1 कप ऑफ कॉफी या टी को रिड्यूस करें एंड रिप्लेनिश इट विद दी वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। आप सिंपल कोकोनट वाटर ले सकते हैं, ओआरएस के छोटा सा सैशे आता है, कीप इट विद यू, तो पानी में डालिए 1 लीटर वाटर में and have it. It will improve overall cognitive recall and reduce heart palpitation which occurs due to coffee and tea, जिसमें caffeine and tannin होता है इसकी वजह से। Third thing is night time, क्या हमें हाइजीन रखना है? तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि we should focus on active recovery rather than passive scrolling, which is a very very common problem. I'm myself, मैं knowledge कर रहा हूँ, मैं खुद भी सफर करता हूँ। At times कुछ मैसेज आ जाता है, रात को स्क्रॉल करने लग जाते हैं हम लोग इंस्टा पे, व्हाट्सएप पे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है रिप्लेस सोशल मीडिया, जिसको बोलते हैं ब्रेक्स, जो हम बीच बीच में लेते हैं, विद 5 मिनट ऑफ ब्रीदिंग एक्सरसाइज या शॉर्ट वॉक। आपने आंखें बंद करके सिंपल गहरी सांसें लेनी है बिफोर स्लीपिंग, एंड दैट विल रिड्यूस अ लॉट ऑफ स्ट्रेस दैट इज बिल्ड अप ओवर द डे। इट विल जो आपका फाइनल क्राइसिस सेट इन होता है उससे पहले आपको नॉर्मलाइज कर देगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। या प्लीज, कॉग्निटिव परफॉर्मेंस की जब हम बात करते हैं तो कॉग्निटिव परफॉर्मेंस क्या होता है, आपको थ्रू आउट द डे कुछ कुछ चीजें जैसे आंखों से रिलेटेड हमारे बहुत ज्यादा यूज है, क्योंकि वी ऑल आर इनटू एकेडमिक फील्ड, हम पढ़ते हैं पढ़ाते हैं। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है अपनी आंखों का रखरखाव। तो उसके अंदर आता है पहला 20-20-20 रूल। What you have to do is every 20 minutes of studying or on your watching a screen, look at something 20 feet away for 20 seconds. That is what you have to keep in mind. अगर आपको अपनी आंखों को स्ट्रेन से बचाना है, आपकी आंखों की आईसाइट को प्रोटेक्ट करना है अपनी, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें दूसरी चीज ये होती है, कई लोगों को हेडेक्स होना स्टार्ट हो जाता है, जिसको बोलते हैं टेंशन हेडेक। जब आपकी ऑक्यूलर मसल्स आपके कंटिन्यूअसली एक ही डायरेक्शन में स्ट्रेन रहेंगे, अगर एक ही काम कर, जैसे हम जस्ट जिम में कर रहे हैं और हम एक ही चीज को रिपीटेडली बार बार करते रहेंगे, तो वहां पे फटीग बिल्डअप हो जाएगा उसके अंदर, एंड दैट विल स्टार्ट पेनिंग और इंजरी बढ़ सकती है, इंजरी के चांसेस। सिमिलरली जब हम आंखों की बात करते हैं तो उसी लिए भी हमारे को जरूरी है कि वी फॉलो दिस रूल ऑफ 20-20-20। This will release ciliary muscles tension and reduce ocular fatigue and tension headaches. Next slide, please. Yeah. जो फैकल्टी के लिए प्रिस्क्रिप्शन की, ये तो मैंने स्टूडेंट्स के लिए बात की थी, बट इसमें कुछ चीजें फैकल्टी पे भी अप्लाई होती है। बट हम बात करें फैकल्टी के लिए पर से, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एक्टिव पीडागोगिक प्रैक्टिसेस जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें आपने क्या करना है, यू हैव टू इनकॉर्पोरेट स्टैंडिंग लेक्चर्स। जैसे हमारे यहाँ पे अभी ऑफिस में बात हो रही थी, आई वाज देयर इन द मीट इन कॉन्फ्रेंस इन मुंबई। तो स्पेसिफिकली रिलायंस की अगर बात करूँ तो देयर आल्सो दे थॉट ऑफ कि हम लोग एक स्टैंडिंग डेस्क कल्चर रखेंगे। कुछ स्टैंडिंग डेस्क लगाई जाएंगी जहां पे आदमी अपना खड़ा होकर के लैपटॉप से वहां पे बैठ खड़े होकर काम कर सकता है। तो सिमिलरली यू कैन स्टार्ट विद द लेक्चर्स, जहां तक हो सके आप खड़े होकर के लें,
अगर कोई सिटिंग काम कर रहे हैं तो हर 2 मिनट का बीच में, आप 2 घंटे के सेमिनार है तो बीच बीच में हर 25 मिनट के बाद 2 मिनट का ब्रेक ले लें, ठीक है, वॉक कर लें अपना। राइट, माइक्रो पेसिंग का क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कि शेड्यूल 10 मिनट्स बफर्स बिटवीन बैक टू बैक स्टूडेंट ऑफिस आवर्स एंड डिपार्टमेंटल मीटिंग। मतलब कि अगर आप कंटिन्यूअस किसी मीटिंग में होके आए तो 10 मिनट की वॉक करें एंड देन यू गो बैक एंड डू योर अनदर टास्क, सो दैट इट विल गिव अ बूस्ट टू योर हार्ट। आपके हार्ट मसल जो है एक्टिव होगा, आपको ब्लड सर्कुलेशन ब्रेन में एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी ऑर्गन्स, इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स में जाएगा एंड इट विल गिव यू अ फ्रेशनेस। इसको मतलब वॉकिंग गिव्स यू इज लाइक मेडिटेटिव एक्टिविटी अगर आप उसको अच्छे से करते हैं। डिजिटल सनसेट की अगर हम बात करें, शाम को स्ट्रिक्टली आप अपना कोशिश करें ईमेल बाउंड्रीज की, मैं रात को एक इतने अमाउंट 7 बजे के बाद आई नॉट आंसर until इट इज वेरी अर्जेंट, ठीक है। I'll not check copies, I'll not do these tasks which were supposed to be done in the office hours or school, university time। मैं उस टाइम पे करूंगा। I'll give my time to my family or myself, my physical health also, right? क्योंकि कॉन्स्टेंट लेट नाइट जो कम्युनिकेशंस होते हैं बैक एंड फोर्थ ऑन व्हाट्सएप, सोशल मीडिया एप्स और मेल, ये कॉर्टिसोल को ट्रिगर करते हैं और स्लीप को डिस्टर्ब करते हैं। जिसका कॉर्टिसोल का लेवल शाम होते होते कम होना चाहिए, वो पूरा थ्रू आउट द डे बिकॉज ऑफ स्क्रीन टाइम हाई रहता है थ्रू आउट द नाइट, राइट। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आती है वो आती है प्रिवेंटिव क्लिनिकल स्क्रीनिंग, हेल्थ को एनुअल हेल्थ चेकअप्स बोलते हैं। तो आप हो सके तो जिसमें हम बात करते हैं बेस लाइन नंबर्स, हमारे नो योर बेस लाइन नंबर्स ऑफ ब्लड प्रेशर, फास्टिंग ग्लूकोज, लिपिड प्रोफाइल, विटामिन D, B12 बहुत कम हो रहा है आजकल क्योंकि मोस्टली हम इंडोर्स रहते हैं, सिटिंग हमारी इंडोर्स रहती है। फूड भी जो है हम ज्यादातर हमारा फास्ट फूड कल्चर आ गया है, कई बार हमारे को वी आर बिजी विद आवर शेड्यूल, वी डू नॉट हैव द टाइम टू कुक फॉर आवरसेल्फ, वी ऑर्डर फ्रॉम आउटसाइड। So these few things we need to be checked annually, and plus one more thing, आप other screening exam, अगर if you are above 40 you can go for prostate, जो है prostate का PSA टेस्ट होता है। If you are a woman you can go for gynecological examination, particularly if I'll say pap smear to prevent any early screening of cancer, PSA for early screening of prostate cancer. So these tests should be included in your annual health checkup program, which is a must। अगर आपकी कॉलेज यूनिवर्सिटी ऐड करती है तो वेरी गुड, अदरवाइज आप खुद से भी करवा सकते हैं। लास्ट जो हमारा ये कैंपस प्रोटोकॉल जो है, ये कोई मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाया है, दिस इज अ specific guideline from the WHO and the organizations who runs this campaign of International Self-Care Day. This year's theme is Test, Track and Thrive. So what does this mean? जो हमने बात की बेसलाइन टेस्टिंग की, अभी जो हम बात करते हैं स्क्रीनिंग एंड बेसलाइन टेस्टिंग की, तो इससे ये जरूरी है कि बिफोर नोइंग दैट व्हाट इज रॉन्ग, अगर हमें पता ही नहीं कि क्या गलत चल रहा है हमारे साथ, तो हम क्या उस पर एक्शन लेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है एस्टैब्लिश बेसिक मैट्रिक्स। अगर कोशिश कर सकते हैं आप, अगर कुछ फ्री हेल्थ कैंप्स लगा सकते हैं बच्चों के लिए, प्राइमरी केयर फिजिशियंस को बुला के, दैट वुड बी ग्रेट। अदरवाइज इसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं एज ए एनुअल हेल्थ चेकअप फॉर योर फैकल्टी मेंबर्स, जस्ट लाइक वी डू इन रिलायंस फॉर आवर एम्प्लॉइज टू चेक फॉर बेसिक पैरामीटर्स। उसमें आई हेल्थ मतलब आई चेकअप मैंडेटरी होता है बिकॉज मोस्टली मैंने बताया कि आपको यू हैव अ लॉट ऑफ स्ट्रेन ऑन योर आईज। एर्गोनॉमिक चेकअप्स होते हैं जिसमें कि आपके पोस्चर्स, नेक और बैक के बारे में चेक किया जाता है कि कहीं आप सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस के लिए एग्रीवेट मतलब एक मतलब तो नहीं जा रहा है उसकी तरफ, लंबर स्पॉन्डिलाइसिस तो नहीं हो रहा है आपको, इज देयर प्रॉब्लम ऑफ डिस्क प्रोलैप्स तो नहीं बढ़ रही है आपकी। तो दीज स्क्रीनिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे शुड हैपन रेगुलर बेसिस। फिर उसके बाद आता है ट्रैकिंग। सो व्हाट इज अबाउट ट्रैकिंग? ट्रैकिंग द डेली एक्शन मैट्रिक्स, लाइक आप अपने स्लीप ड्यूरेशन को ट्रैक कर सकते हैं। देयर आर गुड वॉचेस दीज डेज व्हिच ट्रैक योर स्लीप टाइम, कि आपके स्लीप स्कोर देती हैं आपको, गुड है, बैड है, पुअर है, this kind of they have and the duration of the sleep that you have gone through. Daily step count आप चेक कर सकते हैं if you want to track your physical activity की बैंक एटलीस्ट 10,000 steps का बहुत बड़ा कल्चर आजकल आ गया है कि if you want to reduce weight एटलीस्ट 10,000 steps चल रही है, if you want to improve your metabolic health 10,000 steps चल रहे हैं, उसका भी साइंस है। बिफोर 8,000 steps अगर आप 8,000 से कम अगर आप चल रहे हैं, you will sustain your body जो BMI रेट है, लेकिन आप उसको बढ़ा नहीं पाएंगे, आप अपना वेट रिड्यूस नहीं कर पाएंगे। इफ यू गो बियॉन्ड 8,000 स्टेप्स देन ओनली ग्रेजुअली योर अक्यूमुलेटेड फैट स्टार्ट्स रिड्यूसिंग। तो उसके लिए जो मिनिमम अमाउंट आपको स्पेंड करना चाहिए ऑन वॉकिंग वो है 50 मिनट्स पर डे फॉर 5 days इन अ वीक। मतलब जो टोटल हो जाता है 150 मिनट्स पर वीक। ये बेसिक रिकमेंडेशन है WHO की तरफ से दैट यू हैव टू फॉलो, all of us have to follow। Then you can check your mood and stress levels. There are certain surveys which I shared with ma'am also.
PHQ9, GAD7, ये ऑनलाइन भी अवेलेबल होते हैं. यू कैन गो एंड ट्रैक दीज थिंग, चेक टिक होते हैं, इसमें स्कोरिंग होती है 0 1 2 3 की. आप अपने कॉलेज में भी अपने स्टूडेंट्स के लिए भी सर्विस करवा सकते हैं PHQ9 विद द हेल्प ऑफ अ साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट, जो अर्ली आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है. बिल्डअप स्ट्रेस या फिर डिप्रेशन का कोई शिकार तो नहीं हो रहा है आपका फैकल्टी या फिर आपका कोई स्टूडेंट, राइट. उसके बाद आता है थ्राइव. तो सस्टेनेबल हेल्थ के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यू एडजस्ट योर स्टडी स्केड्यूल्स. आपकी डाइट प्रॉपर ऑन टाइम होनी चाहिए. कोशिश करें until it is necessary, don't change your schedule of disclose the diet. Resting hours भी आपकी उसी तरीके से आपके पैटर्न जो है फिक्स्ड होना चाहिए. there might be a time जब आप एग्जाम में जा रहे हैं, तब हो सकता है कि उन 10 15 20 दिनों के लिए थोड़ा सा आपका स्लीप साइकिल गड़बड़ा जाए, बट उसके बाद दोबारा अपना क्या बोलते हैं उसको, कम बैक एंड रीस्टार्ट योर शेड्यूल अगेन. क्योंकि एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी, हमारे एक सीनियर ने बोली थी कि आपके ग्रेड्स B+ आएगा चलेगा, A+ नहीं आया, बट अगर आपकी हेल्थ खराब हो गई इस वजह से, you will not be able to recover that. You can come back again in the next semester, but you cannot retrieve your health easily once it goes off track. So if you follow all these things, the outcome will be very good in the form of higher stamina, lower anxiety, lower fatigue, and you will do better over time. आप देखेंगे कि आप academically better कर रहे हैं. तो ये शॉर्टकट जो मेथड्स होते हैं उसकी बजाय अगर हम लॉन्ग टर्म की सस्टेनेबल मेथड्स की तरफ जाएं तो ज्यादा फायदा होगा. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. या फिर इसके बाद आता है लास्ट में बिल्डिंग अ कल्चर ऑफ सेल्फ केयर. कैसे हो सकता है? उसके लिए सिस्टमिक इंटरवेंशंस आर रिक्वायर्ड, एंड सबसे इंपॉर्टेंट है कैंपस लीडरशिप बाय द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द फैकल्टी. देखिए, आप अपने स्टूडेंट्स के लिए यू आर नॉट जस्ट अ टीचर, यू आर अ रोल मॉडल ऑल्सो. So the kind of culture, the kind of behavior that you will display will be in a way accepted by or adopted by your students. Why? Because अगर वो देख रहा है कि आप लेट नाइट कभी आप काम कर रहे हैं, आप घर पे जाकर के भी अपना जो है बर्न आउट हो रहा है, मतलब अपने घर पे काम लेके जा रहे हैं, तो वो भी वही लेके जाएगा अपने साथ माइंड में जब वो अपने वर्क फील्ड में दोबारा लौटेगा आफ्टर कंप्लीटिंग स्टडीज, कि यार अगर मुझे एक्सेल करना है तो आई विल हैव टू बर्न आउट और देयर इज नो अदर वे. तो वो चीज जो है ना, इसीलिए हम बोलते हैं कि आप कल्चर जो क्रिएट करेंगे वही बच्चे इम्बाइब करेंगे. तो इम्बेड वेलनेस ब्रेक्स इनटू लॉन्ग लेक्चर ब्लॉक्स एंड एक्टिवली प्रमोट फैकल्टी वेलबींग पॉलिसीज. आप अपने तरफ से जो मैंने बात की कि एक आप नो गो कि भाई आप घर पे जाके अपना यहाँ ये स्कूल का काम जहां तक हो सकता है यूनिवर्सिटी काम नहीं करेंगे until it is absolutely necessary. एंड स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें तो उनको यू कैन हैव अ 7 day सेल्फ केयर चैलेंज, जहां पे आप ये नहीं जाना, परफेक्शन की तरफ नहीं जाना है, कोई भी एक चीज पकड़ लीजिए कि आप अपनी स्लीप को जो है ट्रैक कीजिए फॉर 7 days. हाउ गुड इज योर स्लीप क्वालिटी, या आप अपने हाइड्रेशन लेवल को चेक कीजिए, क्या आप 8 से 10 ग्लास कम से कम 2.5 to 3 लीटर ऑफ वाटर आप क्या ड्रिंक कर रहे हैं डेली, ये आपने चेक करना है. या फिर आप अपना क्या मैं 30 मिनट्स पर डे वॉक कर पा रहा हूँ नहीं. कोई भी एक चैलेंज आप अपनी तरफ से अपने कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में कर सकते हैं स्टूडेंट्स के लिए, एंड फैकल्टी कैन आल्सो पार्टिसिपेट. एंड और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, शेड्यूल एनुअल प्रिवेंटिव हेल्थ स्क्रीनिंग अपॉइंटमेंट, ताकि आपका जो साइकिल आपको पता रहे कि व्हाट वी हैव टू टारगेट. अगर हमें पता होगा तभी हम उसके लिए बेटरमेंट के लिए काम कर पाएंगे. सो थैंक यू ऑल. I think my slides over. So last, I'll end with this slide. Self-care is not an indulgence. It is a personal medical responsibility. Caring for yourself today will ensure that you can educate, learn, and thrive tomorrow. Thank you. Thank you all. If anybody has any questions with respect to anything which I presented, or apart from that, I am the floor is open. किसी को कुछ समझ नहीं आया, लगता है कुछ ज्यादा फास्ट चला दिया मैंने, मुझे लगता है. नहीं सर, परफेक्ट पेसिंग थी. कोई उसमें इशू नहीं है. तो आई वुड अगेन अर्ज, हम मेरे जो फैकल्टी मेंबर्स हैं वो आपने जो चीज़ें कही हैं उनमें से आई एम श्योर 70% चीज़ें ऐसी थी जो सबको पता है, क्योंकि सिंपल चीज़ें हैं और कॉमन सेंसिकल हैं, इंट्यूटिव हैं. लेकिन ये भी मैं बार बार अपने साथियों को भी कहता हूँ कि जो चीज़ें सिंपल हैं वो सिंपलिस्टिक नहीं है.
उसके पीछे एक डीप साइंस है जो डॉक्टर आदित्य ने आपके सामने प्रेजेंट किया है। और आई वुड से कि हम उनकी प्रेजेंटेशन में आई वुड से देयर वाज अ क्लिनिकल प्रिसीजन एंड परफेक्शन। अदरवाइज मतलब यही इसी चीज को बहुत खींच खांच के 2 घंटे भी चलाया जा सकता था। लेकिन जो सर की प्रेजेंटेशन की ब्यूटी थी कि वो जो टू डूज हैं उन्होंने बहुत क्लियरली आर्टिकुलेट किए हैं। तो मैंने भी अपने टू डूज जो सर ने जो पॉइंट्स बताए हैं वो निकाले हैं, विच आई वुड नॉट शेयर नाउ, आई वुड वांट अदर्स काइंडली टू शेयर। आपके टू डू क्या हैं? जितने भी पॉइंट सर ने बताए हैं आपके अपने केयर के लिए या if you're not comfortable, you can put your questions in the chat box as well. सर नमस्कार। नमस्कार संजय जी, वेलकम बैक। थैंक यू सर, थैंक यू। इस सेशन का फर्स्ट लेक्चर ही बहुत जिसको कहते हैं कि रेलेवेंट है। खासकर जो सर ने बात कही कि एक जो कल्चर बन गया है हमारा जिसमें कि हम शायद प्रोफेशनल कमिटमेंट से और बाकियों को इतनी तवज्जो देते हैं कि अपना सेल्फ केयर के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं रहता है। दिन रात काम में लगे हुए हैं और वही चीज़ शायद स्टूडेंट को भी आगे कई बार हम मोटिवेट जिसको बोलते हैं मोटिवेट करते हैं कि नहीं दिन रात पढ़ो ये वो। लेकिन ये सब मैं सहमत हूँ कि कभी हमने क्लास में भी बच्चों को सेल्फ केयर के लिए कभी मोटिवेट नहीं किया होगा, बहुत रेयर उस केस में। दूसरी जो इसी से रिलेटेड मेरी एक क्वेरी है कि मेंटल हेल्थ का आज की डेट में एक बहुत इशू चल रहा है, खासकर स्टूडेंट्स के केस में, और बहुत सारे ट्रेंड प्रोफेशनल अवेलेबल नहीं है अगर हमने किसी को सजेस्ट करना भी है। इवन मैं एक दिन का इंसिडेंट बताऊं, मेरी वाइफ सी केम अक्रॉस 2 or 3 स्टूडेंट्स जिनको उसको लग रहा था कि देयर इज सम प्रॉब्लम। तो मेरे से पूछ रही थी ये बताओ कि मैं इनको कहाँ भेजूं, किसके पास भेजूं, कहाँ से ये मेंटल हेल्थ से रिलेटेड काउंसलिंग लें। दैट वाज अ वेरी, इसको कह सकता हूँ कि मेरे लिए भी बहुत वो था कि मैं क्या सजेस्ट करूँ। हमारे यहाँ मैडम है जो साइकोलॉजी यहाँ सब्जेक्ट चलता है, उसकी मैडम है, तो मैंने कहा मैं उनसे बात कर सकता हूँ, वो थोड़ा बहुत तो शायद बताएं। बट मैडम ने बताया कि बहुत ज़्यादा इस तरह से मेंटल हेल्थ काउंसलर अभी अवेलेबल नहीं है। तो काइंडली इसके ऊपर सर आप थोड़ा सा अगर कुछ बता पाए। श्योर दैट्स अ वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन सर। आपने जो फील किया है और उसको हम सब अंडर जिसको बोलते हैं अंडर करंट चल रहा है, बट एवरीबडी इज फीलिंग इट बट नोबडी हैज एग्जैक्ट आंसर्स करना क्या है इसके लिए। सो देयर इज अ वेरी गुड ऑर्गेनाइजेशन विद द नेम ऑफ सिल्वर ओक। सिल्वर ओक का आप देखेंगे तो उन्होंने काफी अच्छा काम किया है इसके ऊपर, काउंसलिंग के ऊपर स्पेसिफिकली। इनकी एक ऐप आती है, अगर आप ऐप डाउनलोड करना चाहें तो यू कैन डाउनलोड ट्रैंक्विल माइंडफुलनेस ऐप, TRANQUIL, ट्रैंक्विल माइंडफुलनेस ऐप है। तो ये आई थिंक प्ले स्टोर पे एंड आईफोन दोनों पे अवेलेबल है, तो इजीली यू कैन डाउनलोड इट। They have free versions also and they have paid versions also. And as a group you can tie up also with them कि वो आपको कुछ सब्सक्रिप्शन मॉडल पे आपके स्टूडेंट्स के लिए they can provide you services something which is free of cost। कुछ काउंसलिंग आपके लिए फ्री कर देंगे एंड कुछ पेड हो जाएंगी। अगर किसी को कुछ ज्यादा मेजर इशू है, फर्स्ट काउंसलिंग फ्री कर देंगे आपकी। समथिंग ऑन दैट लाइन दे कैन डू फॉर यू। आप उनसे बात कर सकते हैं। इफ यू नीड आई कैन गिव यू नंबर, मैम के साथ मैं शेयर कर दूंगा। उनकी जो कॉर्पोरेट टीम है जो उसको देखती है बेसिकली सब्सक्रिप्शन एंड ऑल। बाकी आप खुद से एक बार ट्राई कीजिएगा। सिल्वर ओक जो है इनकी वेबसाइट है एक ग्रुप की। और रही बात सर कि साइकोलॉजिस्ट, देखिए काउंसलिंग इज अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। हमें लगता है साइकोलॉजी पढ़ाने वाला काउंसलिंग भी कर सकता है। तो दिस मे और मे नॉट बी ट्रू। Counseling requires a lot of empathy to first go through what they are going through, and उसके लिए it is मतलब you have to have that, बोलते हैं कि attitude and aptitude दो अलग चीजें होती हैं। Attitude होना चाहिए listening वाला
कि आप सुन पा रहे हैं उनको विदाउट बीइंग जजमेंटल अबाउट व्हाटएवर दे आर शेयरिंग विद यू, एंड एप्टीट्यूड होता है कि आपने वो एम्पैथेटिक अप्रोच ली है कि नहीं ली है, दैट यू कैन गाइड देम वेल। सो आपको साइकोलॉजिस्ट के लिए तो मैं सजेस्ट करूंगा कि यू गो थ्रू दिस ऐप ऑनलाइन जहां अवेलेबल है। एंड जो मैंने मैम के साथ सर्वे शेयर किया है, एक छोटे से होते हैं, ये GAD-7 होता है, जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर के लिए स्क्रीनिंग टूल है, विच हैव 7 क्वेश्चंस जिसको आप इजीली सर्कुलेट कर सकते हैं बच्चों के साथ, एंड यू कैन आस्क देम टू शेयर देयर जो व्हाट दे आर फीलिंग थ्रू। उसमें स्कोरिंग होता है 0, 1, 2, 3, आप अलग अलग स्कोरिंग को देख सकते हैं, उसमें करके टिक कर सकते हैं। ऐसा ही होता है PHQ-9 सर्वे विच टारगेट्स डिप्रेशन, उसमें 9 क्वेश्चंस होते हैं विच टॉक्स अबाउट हाउ यू आर फीलिंग टुडे, ओवर लास्ट 2 वीक्स कैसा लगा आपको, क्या आपको लगता है कि आई एम नॉट गुड फॉर डूइंग एनीथिंग, क्या डू यू हैव सुसाइड। सो सिमिलरली दे हैव क्वेश्चनियर्स which can be a good screening tool to begin with to identify who is a candidate। जैसे मैंने मैम को शेयर किया, उसमें आइडेंटिफिकेशन के टूल भी है, किससे कितने मार्क्स आ रहे हैं, उस बेसिस पे आप किसको रेफर करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, who can be just counseled easily and he will be good। और जिसको लग रहा है कि नहीं यार ये थोड़ा ज्यादा स्कोर आ रहा है इनका, तो उनको आप काउंसलिंग के लिए स्पेसिफिकली भेज सकते हैं। दिस इज अ गुड टूल, यू कैन शेयर विद योर साइकोलॉजी टीम मैम, जो साइकोलॉजी के प्रोफेसर है उनसे आप डिस्कस कर सकते हैं। इट्स अ गुड टूल। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर इन्फॉर्मेशन। ये बहुत बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन है हम सबके लिए जो आपने पॉइंट आउट किया है। एक चीज सिर्फ मैं और ऐड करना चाहूंगा, जो संजय जी का सवाल था, वो सिर्फ ये कि अल्टीमेटली जिसको हम बेयरफुट काउंसलर्स की बात करते हैं, इतनी बड़ी संख्या में ट्रेन प्रोफेशनल्स अभी नहीं हैं, और मुझे अगले 10 सालों में भी ऐसे होते नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि मैं बड़ा क्लोजली वॉच कर रहा हूँ जो ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो मुझे पता है ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत लिमिटेड है। तो यदि टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में फंडामेंटल्स ऑफ काउंसलिंग को एक कंपलसरी कंपोनेंट के रूप में डेवलप करें, तो थोड़ी बहुत जो फर्स्ट लेवल, जिसको हम लोग फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स कहते हैं, उस लेवल की जो काउंसलिंग है, वो हर टीचर को वो स्किल ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इम्बाइब करने ही पड़ेंगे, तभी इस मिनेस को हम कंट्रोल कर पाएंगे। अदरवाइज तो ट्रेन प्रोफेशनल्स की तलाश जो है हमको बहुत प्रतीक्षा में रखेगी, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है। क्वेश्चन मैं देख रहा था, हाँ सर प्लीज। जस्ट हियर आई जस्ट वांट टू ऐड अ फ्यू थिंग। जब आपने बताया, ये हमारे यहाँ पे कंसेप्ट होता है, इसको बोलते हैं मेंटल हेल्थ फर्स्ट एडर्स। फर्स्ट एड ट्रेनिंग होती है फिजिकल हेल्थ के लिए, वैसे ही हम लोगों ने यहाँ पे हमारे फ्लोर पे भी हमने मेंटल हेल्थ फर्स्ट एडर्स बनाए हुए हैं। वो स्पेसिफिकली उनको हम थोड़ा बेसिक वो मटेरियल, स्टडी मटेरियल देते हैं, उनकी बेसिक हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हु आर द गुड कैंडिडेट्स हु हैव दैट एप्टीट्यूड टू लिसन टू पीपल विदाउट बीइंग जजमेंटल एंड हु कैन प्रोवाइड अ बेसिक लेवल ऑफ काउंसलिंग टू देम। तो वो हम आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस है, इसका आप निमहैंस से कनेक्ट कर सकते हैं। निमहैंस इज अ वेरी लाइक, इसको बोलते हैं हमारा प्रीमियर इंस्टीट्यूट है इंडिया का ऑन मेंटल हेल्थ, बेंगलोर बेस्ड है। सो उनके प्रोग्राम्स चलते हैं मेंटल हेल्थ के ऊपर, जो कि नॉन मेडिकल फैकल्टी जो पीपल कैन आल्सो ज्वाइन एंड गेट देमसेल्फ सर्टिफाइड एज अ फर्स्ट एडर, मेंटल हेल्थ फर्स्ट एडर्स। सुपर सर, देयर इज अ क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स, पैनिक अटैक को लेकर है सर वो क्वेश्चन, कि स्टूडेंट्स में अक्सर पैनिक अटैक आ जा रहे हैं एग्जाम के ठीक पहले या कुछ स्ट्रेस सिचुएशन में, तो एज ए टीचर क्या प्रोटोकॉल हो सकता है? सर आप म्यूटेड हैं आदित्य सर। सो सॉरी, थैंक यू फॉर पॉइंटिंग आउट। इसमें मेनली हमें जो देखना है, पैनिक अटैक के कुछ सिम्टम्स होते हैं विच वी हैव टू आइडेंटिफाई फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। जो क्लिनिकल डेफिनेशन होती है वो डिफरेंट है, और एक हम जो असेस करते हैं खुद से कि बच्चा कैसे बिहेव कर रहा है, कि थोड़ा सा घबराया हुआ है, थोड़ा सा रोना चालू हो गया है, वो चीज हो गई। एक मेंटल लेवल पे हम बोल सकते हैं कि पैनिक कर रहा है, ठीक है। जो फिजिकल मैनिफेस्टेशंस होते हैं उसके, वो होते हैं कि बच्चा पाल्पिटेशन फील कर रहा है कि मेरे दिल में धड़कन तेज तेज तक हो रही है, ही विल स्टार्ट हैविंग दैट स्वेटिंग, ठीक है। उसको बहुत ज्यादा वो बोलने में हल्काएगा, बात नहीं कर पाएगा ठीक से, ठीक है। हार्ट जो रेट है वो 100 के अबाव जा चुकी होगी। तो इन सिचुएशंस में एक चीज, अगर आपके यहाँ पे से अगर कोई बेसिक टूल्स अवेलेबल है बीपी एंड पल्स चेक करने के, पल्स ऑक्सीमीटर, बीपी, यू डू दैट। बट अगर सडनली कहीं आ जाता है, ये सिम्टम दिख रहे हैं कि वो घबरा रहा है, बिल्कुल एकदम से रोना चालू हो गया, टीयरिंग, बिल्कुल स्वेलिंग ऑफ द आईज, तो उस सिचुएशन में ब्रीदिंग डिफिकल्ट हो रही है, उसको सांस नहीं ले पा रहा हूं मैं, और सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ठीक है।
तो व्हाट वी हैव टू डू इज सबसे सिंपल एक्सरसाइज है लॉन्ग डीप ब्रेथ। पहली चीज खुली खुली जगह पे बैठे, उस अगर क्लोज एनक्लोज स्पेस है तो उस एनक्लोज स्पेस से बाहर जाएं। सेकंड थिंग, अगर आपने टाइट क्लोथिंग पहनी है, आपके कॉलर्स टाइट हैं, आपके बेल्ट टाइट है, बटन्स बहुत टाइट है, टाइट क्लोथिंग है, तो उसको पहले रिलीज करें, लूज करें। बेल्ट वगैरह हैं, बटन्स हैं, उनको थोड़ा लूज करें, हवा आने दे सर्कुलेशन। एंड देन आस्क देम टू आइदर लाई डाउन ऑन द मैट, फ्लोर पे लाई डाउन एंड टेक लॉन्ग डीप ब्रेथ्स। इफ दे कैन डू दैट, वो भी कई बार हेल्प करता है। कई बार पैनिक अटैक्स में कुछ ज्यादा सीवियर केसेस में क्या होता है, टिटनी हो जाती है, हार्ट ऐसे अकड़ जाते हैं। तो वो रिजॉल्व करने के लिए एक सिंपल तरीका होता है, इसको हम बोलते हैं, आपने मूवीज में देखा होगा, इंग्लिश मूवीज में माउथ ब्रीदिंग वो करते हैं, एक पॉलिथीन या वो लेते हैं, बॉक्स ब्रीदिंग बोलते हैं उसको। उसमें वो फूंक मारते हैं और फिर उसी को इनहेल करते हैं, फूंक मारते हैं उसी को इनहेल करते हैं। उससे क्या होता है, जो ये सिम्टम्स फिजिकल मैनिफेस्टेशंस हैं उसके, वो कम हो जाते हैं। तो दीज आर फ्यू टिप्स एज अ फर्स्ट एड। थैंक यू। थैंक यू सर। और हमारे कोई साथी कुछ प्रश्न पूछना चाहें? आपने जो टू डू भी आपने चुना है, जैसे मैंने तो 3 टू डू चुन लिए हैं। जैसे एज अ हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन, एक तो मुझे लग रहा है एम्प्लॉई हेल्थ एंड वेलबींग पॉलिसी, मुझे लगता है आई मस्ट फ्रेम एंड ऑपरेशनलाइज। दूसरी चीज जो हमारे कॉलेज में नेक्स्ट वीक हो रही है, ग्रुप मेंटरिंग सेशंस शुरू हो रहे हैं सर। वेरी गुड। उसमें एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन जो है, हम सेल्फ केयर या ट्रैकिंग को लेकर के वी कैन इंटीग्रेट। तो एक तो वो हमारा एक रेगुलर फीचर है मेंटर नेट करके, हर महीने के आखिरी वीक में मेंटर मेंटी इंटरेक्शन है ग्रुप में, फॉलोड बाय इंडिविजुअल नीड बेस्ड इंटरेक्शन यदि जरूरत पड़ती है तो वो दूसरी चीज मुझे लग रही है। तीसरी जो हमारी हेल्थ टीम है अभी हमारे साथ जुड़ी हुई है, तो यदि नॉट नेसेसरली कवरिंग इंटायर कॉलेज, लेकिन कुछ बच्चों पे एज ए पायलट ही यदि हम उनको हेल्थ का कुछ कर सकें, उनकी ट्रैकिंग टेस्टिंग का कुछ कर सकें, तो दैट विल बी यूजफुल। और एक और चीज जो मुझे लग रही है कि बहुत ही इजी और डुएबल है, कि नॉर्मल क्लासरूम में भी यदि हम एक छोटे छोटे टिप देते हैं, 20-20-20 वाले टिप देते हैं, या कोई इस तरह के टिप चलते फिरते दे देते हैं, यू नेवर नो 60 और 80 की क्लास की स्ट्रेंथ है, जहां यदि 2 बच्चों में भी वो चीज फॉलो करते हैं, तो आप कहीं ना कहीं उसके लाइफ लॉन्ग वेलबींग में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो दीज हैव बीन सम ऑफ, देयर आर क्वाइट अ फ्यू फॉर माय ओन थिंग, बट ये जो इंस्टीट्यूशनल मुझे तुरंत समझ में आया वो मैंने शेयर किया अभी आपसे। तो आई वुड अर्ज अदर्स ऑल्सो टू शेयर, ताकि डॉक्टर साहब को भी लगे कि हाँ भाई, जो वो समय निकाल रहे हैं उसमें कहीं कुछ इनडायरेक्टली लॉन्ग टर्म में सही कुछ न कुछ तो फर्क पड़ेगा। इट विल बी मोटिवेशनल ट्रिगर फॉर हिम एज वेल। थैंक यू प्रशांत जी। सर एज ए, हाँ जी जी, एज अ जी, मैम, टीचर सर, बोलिए। मैं तो वेलनेस ब्रेक्स ड्यूरिंग लेक्चर्स मेरे को सबसे ज्यादा मोटिवेटिंग लगा है। ड्यूरिंग द लेक्चर अगर आप छोटा छोटा ब्रेक लें तो, बाकी तो हम सब लोग थोड़ा थोड़ा अपने अपने तरह से करने की कोशिश करते ही हैं। वॉक भी करते हैं, प्रिवेंटिव क्लिनिकल स्क्रीनिंग, डिजिटल सनसेट की भी कोशिश करते हैं, बाउंड्रीज रखने की बिटवीन वर्क एंड फैमिली, लेकिन कई बार नहीं भी हो पाता है। यस, 20-20-20 रूल आई विल try to implement it on myself also, and पानी, yes, water breaks तो हमारे बहुत रहते हैं। sleep cycle permissible है, और हम लोग सभी कोशिश करेंगे कि हम लोग वो कर पाए। वन थिंग जो एक बोलता मैम कि हमें वो बोलते द रूम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, सो सिमिलरली यू कैन नॉट बिल्ड, मतलब एक चीज की हम एक साथ, जब सबसे बड़ी दिक्कत आती है ना, जब हम हेल्दी हैबिट्स को लेने की कोशिश करते हैं, तो हम सोचते हैं एक ही दिन में सब कुछ कर लेंगे, आज से अच्छा खाना भी खाएंगे, आज से सोएंगे भी टाइम पे, आज से एक्सरसाइज भी कर लेंगे, और सीधे 30 मिनट्स 1 घंटा पूरा बिल्कुल जिम करके आएंगे। तो वंस वी क्रिएट दिस माउंटेन ऑफ एक्सपेक्टेशन फ्रॉम आवरसेल्फ, नथिंग हैपेंस, हम गिव अप कर देते हैं एंड ऑफ द डे, अरे यार कुछ नहीं हो रहा, रहने दो। तो जस्ट डू वन थिंग, एक जो मैंने 7 डे चैलेंज की बात की थी, एक चीज कर लीजिए, हर को अपनी अपनी चॉइस दीजिए कि यू आर एग्रीइंग टू, अगर आपकी क्लास है कि बेटा
कि ये 3 चॉइसेस हैं, who will tell me every day that they slept at least 7 hours in a day, मतलब रात को 7 घंटे सोया उन्होंने, अच्छा सोया। कौन है जो इसमें से बोल सकता है कि मैं 30 डेज के लिए मैंने कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी की, चाहे मैंने टीटी खेला, बैडमिंटन खेला, या मैंने वॉकिंग की, जिमिंग की, कुछ भी किया, और हु कैन से दैट मैंने एटलीस्ट आज बाहर का कोई जंक नहीं खाया। तो 7 डेज के लिए ही वो कंसिस्टेंसी अगर बिल्ड करनी है तो आप एक टास्क दे दीजिए बस अपने स्टूडेंट्स को, दैट वुड बी ऑफ ग्रेट हेल्प। मैं आज ही बच्चों से बात कर रही थी क्लास में सेल्फ केयर डे पे ही, तो नॉट बीइंग हार्श अपॉन वन सेल्फ इज वन फॉर्म ऑफ सेल्फ केयर, आई थिंक। वंडरफुल, वंडरफुल गुड, वंडरफुल। कि हम अपने आप से इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस ना रखें कि हम उसको बी गुड टू योर बॉडी एंड ऑफ कोर्स द बॉडी विल रिस्पॉन्ड। लेकिन एक डॉक्टर्स पर्सपेक्टिव से, और इट वाज मतलब हमारे लिए बहुत एनरिचिंग लेक्चर था। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू, थैंक यू। एंड थैंक यू ऑल हु हैव जॉइन्ड दिस, एंड आई होप दैट आप अगले सेशंस भी इसी तरह से अटेंड करेंगे, एंड टुगेदर वी विल टॉक अबाउट सम कंटेम्प्रेरी कंसर्न्स इन हायर एजुकेशन। और आज सबसे पहले हमने बात की है ऑन सेल्फ केयर, स्पेशली कि आज से आप 24/7 365 डेज इसके बारे में सोचे। मैंने आज अपने बच्चों को बोला है कि आप सेल्फ केयर मंथ बनाते हैं जून 24 से जुलाई 24 से, लेकिन आप आज से अपने लिए एक पूरा ईयर भर का एक जार लगा लीजिए जिसमें आप छोटे छोटे स्लिप्स में पूरे दिन का आपका बेस्ट चीज क्या था वो डालेंगे, और 1 साल के बाद जब आप उसको निकालेंगे तो आप अपने इस साल की जर्नी जो है वो रिकाउंट कर सकते हैं कि आपने क्या किया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। So I think we should wind up, sir, then. Yes, if there is any still question, please come up with that, otherwise we will close. So all congratulatory messages to Dr. Thank you. Adit and the team. Thank you very much for joining in. हमारे जो दूसरे कॉलेजेस के साथी हैं उनका विशेष आभार, क्योंकि अपने कॉलेज के तो चूंकि मैं कहता हूँ इसलिए भी आना पड़ता है उनको, लेकिन आप अपनी इच्छा से आए हैं तो आपका विशेष आभार। और एक और चीज है जो हमने फीडबैक फॉर्म में भी जनरली पूछते हैं, आप पर्सनली भी हमें कांटेक्ट करके आगे आने वाले दिनों में किस टॉपिक पे चर्चा चाहते हैं, एक्सपर्ट्स ढूंढने की जिम्मेवारी हमारी है, बट थीम कम से कम आप ढूंढें जो लगता है कि ये ऐसा एक इशू है जो बड़ा क्रिटिकल है और जिसपे आप कहीं ना कहीं अटक रहे हैं। We'll be looking forward to receiving your comments, feedback and suggestions also. Just 2 minutes, just give me 2 minutes. I'll share the feedback link as well, जो कि मैं आज शेयर करना भूल गई हूँ because I think I've forgotten how to conduct daily dialogues. So just a second, just yes, here you are with the feedback form. And आदित्य सर, हम आपको ज्यादा लेट नहीं करेंगे, हमें पता है आपकी 4 Thank you, ma'am. Okay. Thank you. Good day, sir. Thank you, sir. all. Thank you for joining.